Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स सो दैट you can get good marks in your exams. In this video, we will discuss important question of IGNOU MBA. Even before this, I have made videos on important question, but then those were chapter-wise videos of important question because that time was new MBA and there were changes in the syllabus and study material. Then we made videos on the basis of 10 years. So now the exam has been conducted many times. So now we have again analyzed the complete syllabus and made a PDF, and in this PDF we have tried to keep a few questions as soon as possible because you people have demanding that we should start a series with less questions. So I have again brought important questions which are very important for your exams. So without wasting any time, let's get started. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPC 03 जो कि है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट. तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन नीड फॉर एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड डिस्कस हाउ इट कैन बी इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि अभी प्रीवियस ईयर में भी आया है और पास्ट 10 ईयर्स में भी आया है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका डिस्कस हाउ पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट बिजनेस. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है. इवन न्यू MBA में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. तो ये क्वेश्चन आप पक्का से करना. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका डिस्कस स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इन डिटेल्स. तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पास्ट 10 ईयर्स में या फिर अभी जब न्यू MBA आपका स्टार्ट हुआ है वहाँ पर ये आ चुके हैं. देन इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कीज फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991. अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारे क्वेश्चन जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनमें मैंने अच्छे से लिखा हुआ है और एक एक क्वेश्चन को लिखने के लिए मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया. एटलीस्ट एक क्वेश्चन के लिए मैंने 10 to 15 वीडियोस देखी है जहाँ से मुझे जो लाइन इजी लगी तो वो मैंने लिखी है. तो प्लीज़ हैंड रिटन नोट्स ज़रूर परचेज़ करना. और आप लोग देख सकते हो कि हमने PDF में आंसर नहीं लिखे हैं. आंसर हमने इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बाकी जो लोग आंसर लिख के PDF सेंड करते हैं वो आंसर आपका IGNOU की जो बुक होती है वहीं से कॉपी पेस्ट किया होता है. तो उनको लिखने का कोई मतलब नहीं है और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी सी टफ होती है. तो जाके आपको पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. अगर आप आंसर खुद से ढूंढोगे, मान लो अगर आप यूट्यूब पर देखते हो वीडियोस तब आप खुद से ढूंढते हो तो एक तरह से वो कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर होगा. एटलीस्ट आपका 80 to 90% सिलेबस वहीं पर कवर हो जाता है और उससे आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से होगी. और
बाकी अगर आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है तो आप लोग हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो परचेस कर सकते हो, वो भी बहुत ईजी और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर एंड इट्स रिफॉर्म्स। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले वाली जो वीडियोस थी वो चैप्टर वाइज थी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए जिसमें क्वेश्चंस कम हो। तो अब की बार हमने यही कोशिश की है कि जितना हो सके क्वेश्चंस को कम से कम रखना है। तो हर पीडीएफ में आपको मैक्सिमम 25 to 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जिनमें से कुछ क्वेश्चंस अभी आ जाएंगे एग्ज़ाम में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम आएंगे, और आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका एनालाइज द मेजर चेंजेस इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और पास्ट डिकेड्स। देन उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग इन सारी पीडीएफ में एक चीज़ और देखोगे कि हमने इसमें प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम नहीं बनाते हैं, आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन पेपर जो होते हैं आपका इग्नू से बन के आता है, तो इनको किसी भी प्रायोरिटी में रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कुछ क्वेश्चंस अभी आ जाएंगे एग्जाम्स में, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे, तो इनमें प्रायोरिटी हमने इसीलिए नहीं रखा है। देन लास्ट में देखिए इस पीडीएफ में हमने टोटल 28 to 29 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको सारे के सारे ही करने। अगर आप लोग एग्ज़ाम से 3 या 4 दिन पहले ये पीडीएफ से पढ़ते हो तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, आंसर आपको हैंड रिटन नोट्स में मिल जाएंगे। तो देखिए अभी 28 क्वेश्चन है। हाईलाइट्स द मेजर अजम्पशन ऑफ हारोड-डोमर मॉडल एंड डिस्कस एनी वन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 29th है इसमें व्हाट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री। तो देख ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो इसमें हमने टोटल 29 क्वेश्चंस लिखे हैं। उसके बाद लास्ट में हमने शॉर्ट नोट्स भी लिखे हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स और एनी, ये 3 जो है ये क्वेश्चन पेपर से आ गया, तो आपको 3 नहीं करना, आपको सारे के सारे शॉर्ट नोट्स करने हैं। जैसे कि इसमें वर्ल्ड बैंक, बीओपी एंड बीओटी, इसका डिफरेंस आता है, सेंट्रल बैंक, एक्सटर्नल कमर्शियल बैंकिंग, इसके बाद एडीआर एंड ड्राइव्स ऑफ सीएसआर। जहाँ पर भी आप सीएसआर का जो टॉपिक है एमबीए में बहुत सारे कोर्स में पढ़ोगे, और जहाँ पर सीएसआर का टॉपिक आ गया ये वहीं पर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो सीएसआर का टॉपिक आपको ज़रूर से करना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPC 03। ये पीडीएफ आपको परचेज़ करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जाके डायरेक्टली मुझे डीएम करना है, उसके बाद आप ये पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो। सेम ऐसे ही आपको हैंड रिटन नोट्स के लिए भी मुझे टेलीग्राम पर डीएम करना है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके ईजिली मुझे डीएम करके इनको परचेज़ कर सकते हो। एंड दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एंड हैंड रिटन नोट्स भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इग्नू MBA जर्नी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MMPC 004 के। इससे प्रीवियस वीडियो में MMPC 01 और 02 के भी डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देखिएगा आप लोग। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.